हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद वाणी की जय। 21 जून। गुरु सदैव मुक्त रहते हैं। जीवन की किसी भी परिस्थिति में उन्हें साधारण मनुष्य मानने की भूल नहीं करनी चाहिए। गुरु का यह स्तर 3 प्रकार से प्राप्त होता है। साधना सिद्ध, जो साधना भक्ति के नियमों का पालन करने से मुक्त बना है। कृपा सिद्ध, जो कृष्ण अथवा उनके भक्तों की कृपा से मुक्त बना है। नित्य सिद्ध, वह जो अपने पूरे जीवन कभी भी श्री कृष्ण को ना भूला हो। जीवन की पूर्णता इन 3 प्रकार से प्राप्त होती है। तमाल कृष्ण को पत्र 21 जून 1970। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद वाणी की जय। अतः पुंगी द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभाग वर्ण and ashram. This varnashram is very important thing in the human society. Unless one accepts these principles of varna and ashram, they are animal society. That is not human society. 4 varnas, the Brahmana, Kshatriya, Vaishya and Shudra, 4 divisions of the society, and ashrama, spiritual order, brahmachari, grihastha, vanaprastha and sannyas. This is Vedic culture, varnashrama. Any society which is devoid of this Vedic culture, varna and ashram, that is not accepted as human society. In the Vishnu Purana also, it is said, varnashramacharvata purushena parapuman Vishnu aradhati nanya tattosa karanam. The whole aim of life is to achieve the favor of Vishnu. Om Tad Vishnu Paramam Padam. That is the Rig Ved mantra. To reach Vishnu. But they do not know the goal of life. Nati vidu sartha gating hi Vishnu. They do not know. Anyone or any society who does not know the aim of life, they are in the darkness. Actually, at the present moment especially, the whole human society has missed the point. They are trying to be happy by material adjustment, by social adjustment, by political adjustment, by economic development, or by religious adjustment. They are trying to make the whole human society happy. But Bhagavad says, Durasaya je bahirarthamanina. This is something which is beyond the fulfillment of hopes. This hope will never be fulfilled. Durasaya. Bahirarthamanina. Because they have accepted the external energy of the Supreme Personality of Godhead, Bahirartha. Just like this body, your body, my body, this is Bahirartha, external. Just like this wrapper. This is external. Real person is not this wrapper or this body. The real person is the soul. But they have no information
of the soul, neither information of Vishnu, the origin of soul. They are interested with the external body. That is called Bohirartha. Bohi means external. Artha means interest. Just like you have seen in our Bhagavad, the picture, the one lady is taking care of the cage and the bird within is dying. So Bohirarthamani means this, that we are taking care of the body, external body, but not taking care of the soul within. This is the civilization of cows and asses. Saeva go khara. Go means cows and khara means asses. Therefore, here it is said, Atah Pungvi Dijasreshta. Dijasreshta. In that meeting of Naimisharanya, there were all best Brahmins. Dija means twice born. Twice born, the Brahmanas, the Kshatriyas, and the Vaishyas. They are supposed to be twice born. One birth by the father and mother, and the other birth is by the Guru and Vedic knowledge. The Guru is the father and Vedic knowledge is the mother. This is in Aryan civilization, this Varnasrama, Varna, Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra. Shudra are once born. They had no ceremony for twice born. Or one who is not twice born, he is a Shudra. If the twice born ceremony is not observed, then it is Shudra. Practically, at the present moment, even in India, these ceremonies are not accepted or they do not care for it. And what to speak of other countries. Therefore, the conclusion of the Shastra is Kalau Shudra Sambhava. In this age of Kali, there are only Shudras. Practically, there is no Brahmana, no Kshatriya, no Vaishyas. Maybe some Vaishyas, but this is the position. But here it is said, Varnasama Vibhagasa. Unless the society comes to the institution for accepting these four varnas and asrama, it is not human society. And in the human society, there is understanding of God, not in the animal society. Therefore, as the institution of Varnasrama is now abolished, people are becoming godless. Because Varnasrama means the institution or a setup of society where gradually one can understand Vishnu and worship Vishnu. Vishnu aradhate. That is the system. Not that so-called Brahmin and so-called Kshatriya. They have no information of Vishnu and they are declaring, I am Brahmin, I am Kshatriya. They are called according to Shastra, Brahma Bandhu, Dijabandhu. Dijabandhu. One who is born of a Brahmin family or a Kshatriya family or Vaishya family, but do not act as Brahmana, Kshatriya and Vaishya, they are called Dijabandhu. They are not accepted as Dija. Stri Shudra Dijabandhu Nang Trayina Shruti Gochara. This Mahabharata was compiled by Vyasdev
for this purpose, because three women, Shudra, the fourth class of the society, liberal class, worker class, Sri Shudra and Dijabandhu, and persons who are born in the families of Brahmana, Kshatriya, but they do not act, they are called Dijabandhu. For them, this Mahabharata was compiled. It is called fifth Vedas. Four Vedas, Sam, Yaju, Atharva. Sam, Yaju, Rik, Atharva. So this Vedic language cannot be understood by the less intelligent class of men who are known as Oman, Shudra and Dijabandhu. Sri Shudra, Dijabandhuna. In the Bhagavad Gita also it is said, Mang hi partha vapasritya jepishu papajunaya striya Shudra tatha vaishya stepi janti parangati. So, when one becomes Krishna conscious, it does not matter whether he is a Stri or a Shudra or a Dijabandhu, stepi janti parangati. They also can be elevated to the highest platform of perfection. So that is Krishna's special favor. हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 20। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु। वह न तो कभी जन्मा है और न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। तो भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि आत्मा का न जन्म कभी हुआ है, न होगा, न हो रहा है, क्योंकि वह सदैव भगवान जैसे हैं सदैव, वैसे ही आत्मा भी सदैव से है। अब कभी जन्म नहीं लिया तो कभी मृत्यु नहीं होती, क्योंकि अगर जन्म नहीं लिया और मृत्यु हो जाए तो ये तो मैच नहीं करता, फिर तो सब खत्म होते जाएगा। ऐसे तो आत्माएं खत्म होती जाएंगी। वन टाइम यूज थोड़ी है। जैसे इस संसार में होता है, एक बार कुछ वस्तु यूज कर लिए, खत्म हो गया, अभी नहीं है, लेकिन वो वस्तु बनी है इसीलिए खत्म हो। जो बना ही नहीं वो खत्म कैसे होगा? यहाँ पे ये भगवान बता रहे हैं। फिर शरीर और आत्मा में भेद बता रहे हैं भगवान। शरीर जो है बदलता है, 6 प्रकार के विकार होते हैं या बदलाव होते हैं शरीर में, लेकिन आत्मा में एक भी विकार नहीं होता। आत्मा जैसे थी वैसे है, वैसे रहेगी। अब आत्मा का अस्तित्व कैसे पता पड़ेगा? अब कोई ऐसा माइक्रोस्कोप तो है नहीं, आप देख लें। एक तो है कि भगवान जो कह रहे हैं, क्योंकि भगवान कुछ झूठ बोल के तो कुछ मिलने नहीं वाला है। लक्ष्मीपति को आप कोई 100 रुपए चंदा तो दे नहीं सकते, तो भगवान क्यों कहेंगे? क्यों वेद व्यास जी शास्त्रों में ऐसा लिखेंगे? लेकिन कलयुग है, यहां लोग सिर्फ शास्त्र और भगवान की वाणी को श्रवण करके विश्वास नहीं करते। तो फिर कॉमन लॉजिक, ये भी एक तरह का है अंडरस्टैंडिंग। जैसे हवा है, हवा दिखती नहीं, लेकिन फिर भी अगर हवा बहती है तो हमें एहसास होता है ठंडी है, गर्म है, या हवा बह रही है, पता पड़ता है। तो वैसे ही शरीर में जीवन है, यानी आत्मा है। जीवन मतलब आत्मा। तो शरीर में जीवन है या आत्मा है, वो कैसे पता पड़ेगा? उसकी चेतना के द्वारा। जैसे बारिश के दिन में या अभी भी उत्तर भारत में जैसे फॉग आ जाता है जनवरी में, तो
वो पूरा जब कोहरा छा जाता है फिर भी लाइट तो होती है ना, यानी आप उससे समझ सकते हैं सूर्य दिख नहीं रहा है। बोलते हैं ना सूरज तो निकला ही नहीं, एक हफ्ता हो गया कपड़े सूख नहीं रहे, सूरज निकला ही नहीं। सूरज तो निकला है, आप नहीं देख पा रहे। नहीं तो दिन कैसे हो रहा है, लाइट कैसे, पूरा अंधेरा तो नहीं हो रहा है ना, उजाला हो रहा है, बट वो कोहरे की वजह से नहीं दिख रहा है। लेकिन आपको ये पता पड़ जाता है लॉजिक से कि सूर्य है। वैसे ही जब बादल आ जाते हैं बारिश के समय में, तो रात और दिन में फर्क तो कर सकते हैं ना आप, भले आप सूर्य को नहीं देख पा रहे। बंबई में बहुत बारिश होती है तो कई बार सूर्य 2-3 दिन तक दिख रहा है, लेकिन पता तो पड़ता है कि दिन हुआ है, सूर्य है। तो वैसे ही भले आप आत्मा को न देख पाए क्योंकि हमारी अभी क्षमता नहीं है, फिर भी पता तो पड़ रहा है कि जीवन है। नहीं तो शरीर में कैसे ये सब जो ऑर्गन काम कर रहे हैं, शरीर कार्य कर रहा है, मेरा हाथ चल रहा है, मेरा मुंह चल रहा है, आंखें चल रही, कान से मैं सुन पा रहा हूं, आप सुन पा रहे हो, क्यों? जीवन है इसलिए। बड़ा सामान्य सा ये तो ज्ञान है कि जीवित शरीर और मृत शरीर में भेद करना कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा नहीं कि वो सांस नहीं ले रहा इसलिए मृत हो गया। तो थोड़ी देर के लिए कुछ ऐसे योगा वाले होते हैं, योगी होते हैं जो 1-1 घंटा सांस रोक लेते हैं, 2-2 घंटा सांस रोकते, तो 1 घंटा का मृत्यु हो गया उसका। ये तो रिएक्शन है, सांस नहीं लेना, हार्ट बीट नहीं चलना, ऑर्गन धीरे धीरे खत्म होना, शरीर सड़ना, ये तो आत्मा निकल गया इसीलिए ये सब हो रहा है। ऐसा नहीं है कि ये हुआ इसलिए आत्मा निकला, नहीं, पहले आत्मा शरीर छोड़ता है फिर ये सब डहना चालू होता है। तो यहाँ पे आत्मा और परमात्मा का भी संबंध को समझाए। जैसे एक वृक्ष पे 2 चिड़िया बैठी है, 2 पक्षी बैठे। तो वृक्ष क्या है? ये शरीर है, और इस शरीर के हृदय में आत्मा भी है और बाजू में परमात्मा। अब एक पक्षी क्या कर रहा है? वो भोगने के लिए कुछ ढूंढ रहा है। एक पक्षी बाजू में है और दूसरा जो है वो इधर उधर देख रहा है कि कुछ खाने को मिले। फिर वो कुछ खाता है तो उसमें से हो सकता है सुख मिले, अच्छा अगर टेस्ट है तो सुख मिले, तो सुख भी उस पक्षी का है। और अगर अच्छा नहीं है, कुछ कड़वा है, कुछ खट्टा है, तो जो दुख मिलेगा उससे, या कुछ खाने से उसका हेल्थ खराब हो गया तो दुख मिलेगा, वो भी उसको ही सहना है, बाजू वाला नहीं सहेगा। ये है आत्मा। और इसको देखने वाला शांति से बैठा, वो है परमात्मा। तो कोई कहेगा कि फिर भगवान हमें रोकते क्यों नहीं? भगवान रोकते हैं, सही करने के लिए भगवान प्रेरित करते हैं, गलत करने से रोकते हैं, लेकिन हम सुनते कहाँ हैं? हम सुनते हैं कई बार नहीं बोलते हैं ना, माय इनर कॉन्शियस, मेरी अंदर की आत्मा बोल रही है। अंदर की आत्मा कौन है? आत्मा के बाजू में परमात्मा बोल रहे हैं। कई बार अंदर की आत्मा और आत्मा मतलब आत्मा, परमात्मा और मन जो है, वो आवाज कहां से आती है हम नहीं भेद कर पाते, क्योंकि हम बद्ध अवस्था में, हम समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए जैसे मैं नहीं समझ सकता कि यहाँ पे वातावरण में कितना ऑक्सीजन है, कितना हाइड्रोजन है, कितना नाइट्रोजन है, कितना दूसरे गैस है, हमको नहीं पता पड़ेगा। और वैज्ञानिक को पता पड़ेगा, और मशीन लगा के सब देखे, हमको नहीं समझेगा। तो वैसे ही हम नहीं समझ सकते ये चीज। तो इसीलिए भगवान क्या करते हैं, वे वचन से कह देते हैं कि कंफ्यूजन नहीं रहे। आजकल लोग बोलते हैं रिटर्न में चाहिए सब चीज, स्टेप टू स्टेप। ठीक है, भगवान ने बोला ठीक है भाई, कलयुग के जीव हो तो तुमको रिटर्न प्रूफ चाहिए, ये लो भगवत गीता रिटर्न प्रूफ, ये लो भागवतम रिटर्न प्रूफ, वेद व्यास मेरा ही अवतार है, मैंने वेद व्यास के द्वारा लिखा है, लो रिटर्न प्रूफ। हाँ, लेकिन हमको समझ में भी नहीं आता भगवत गीता भागवतम, तो फिर उसके लिए भगवान कहते हैं अच्छा, तो मैं अपने भक्तों को भेजता हूं क्योंकि उनको पूरा पता है, तो वो आपको अच्छे से समझा देंगे।
तो भगवान तो हमें हमेशा बता रहे हैं गलत नहीं करना है, सही करना है, लेकिन हम सुन कहाँ रहे हैं। भगवान बैठे हैं, हम इधर बैठे इधर देख रहे हैं, इधर मजा करने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन संसार में भगवान से इंडिपेंडेंट होके मजा करने वाले को सजा मिलती है। अच्छा, फिर भगवान हमें जबरदस्ती क्यों नहीं रोकते? अगर भगवान हमारे साथ जबरदस्ती करेंगे तो फिर तो हम तो पत्थर हो गए ना। एक जीवात्मा में, जीवित में और एक पत्थर में क्या फर्क है? पत्थर को आप उठा के फेंक दो, कुछ नहीं बोलेगा। फर्नीचर है, फर्नीचर उठा के कहीं दूसरे रूम में रख दो। हाँ, आप बेडरूम में बाथरूम बना दो, किचन को बेडरूम बना दो, कुछ नहीं बोलेगा बिल्डिंग। और तो मृत है, वो क्या बोलेगा? लेकिन हम जीवित हैं। अगर हमारे साथ भी ऐसे ही करेंगे भगवान, तो फिर फर्क क्या रहा? तो इसलिए भगवान ने हमें थोड़ी सी स्वतंत्रता दी है। वह क्या है? जीव के पास एक ही चीज है, वो इच्छा कर सकता है। तो मैं इच्छा करता हूं कि मैं भोग करना चाहता हूं, ठीक है, फिर उसका जो परिणाम होगा भुगतना। या मैं इच्छा करता हूं नहीं मैं इधर मुड़ूंगा और भगवान की तरफ हो जाऊंगा और भगवान का सेवा करूंगा, तो फिर वो परिणाम होगा। तो इच्छा ही हम कर सकते हैं। तो हमारी इच्छा अगर सही है, हर जीवात्मा की अपनी अपनी इच्छा है, तो अगर इच्छा को हम सही करें तो उसका परिणाम भी अपने आप सुधर। भगवान ने एक फॉर्मूला बना के दिया। जैसे आप बार बार थोड़ी ना, आपको रेलवे में कैसे होता है पता है, टिकट लेनी, रिजर्वेशन है, आप बैठिए, अनरिजर्व्ड है फिर अनरिजर्व्ड डब्बे में जाइए, ये तो पता है सबको। फिर फॉर्मूला बना के रखा है। ऐसा थोड़ी कि रेलवे मिनिस्टर बार बार सबके घर में जाएंगे, रोज सबको फोन करेंगे कि आज आप ट्रैवल कर रहे हैं क्या, तो आप प्रॉपर टिकट लीजिए। नहीं, ये पता है, प्रॉपर सिस्टम है। हर जगह होर्डिंग लगी रहती है कि प्रॉपर टिकट के साथ ही आप ट्रैवल करें। तो ऐसे ही भगवान ने सिस्टम बनाया है, भगवद गीता के थ्रू, भक्तों के थ्रू एक सिस्टम बना के, प्रकृति का सिस्टम बना के, और सब चल रहा है। हम सुनते नहीं। कई बार लोग होते हैं, आज भी कितने लोग पकड़े जाते हैं विदाउट टिकट। जब पता है कि सही टिकट के साथ ट्रैवल करना है, फिर भी लोग है ना। ऐसे ही भगवान के होते हुए, शास्त्रों के होते हुए, साधुओं के होते हुए लोग इनकी नहीं सुनते, ना भगवान की सुनते हैं, ना शास्त्रों की सुनते हैं, ना साधु की सुनते हैं। फिर क्या होता है? फिर दुख मिलता है। जब टीटी पकड़ लेता है, फिर फाइन लगाता है। तो भगवान ने ऐसे सृष्टि में टीटी बना के रखा, वो माया देवी है, दुर्गा जिसको बोलते हैं। फिर देखते हैं कि ये तो गड़बड़ कर रहा है, हाँ? फिर अपना त्रिशूल लेके आते, पकड़ लेते। वही त्रिताप है। तो भगवान से जितना हम स्वतंत्र होंगे उतना दुख पाएंगे। हमारे एक आचार्य कहते हैं, जीव कृष्ण दास कर ले विश्वास और दुख नहीं। जीव हम कृष्ण के दास हैं, अगर ये हम विश्वास कर लें और उनकी सेवा करें, बस दुख खत्म। ये संसार में कोई दुख नहीं आपके लिए। फिर कुछ भी हो जाए, फिर विश्व युद्ध हो जाए, इकोनॉमी गिर जाए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका मृत्यु हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आत्मा दूसरा शरीर लेके भक्ति करेगा, शुद्ध हो जाएगा पूरी तरह, तो भगवान के धाम जाके भक्ति करेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आत्मा को। तो ये दो जो पक्षियों के द्वारा, एक वृक्ष में एक डाल पे दो पक्षी बैठे, इसके द्वारा समझाया कि एक आत्मा है, एक परमात्मा है। आत्मा सुख दुख में लगा पड़ा है, परमात्मा सिर्फ देखते हैं। समझाने का प्रयास तो कर ही रहे ना, लेकिन हम समझे तब ना। तो अगर हम समझ जाएंगे तो फिर क्या होगा? क्योंकि आत्मा भी भगवान के जैसे, परमात्मा के जैसे अविनाशी है और शाश्वत है। तो क्यों ये भौतिक संसार में सुख दुख के पीछे लगे हुए हैं जो टेम्पररी है? क्यों नहीं हम अपने असली घर में चले जाते? यही भगवान समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हरे कृष्ण।